Survivors, you're making a comeback on TV. So why did you opt for this show? What was the one reason? Well, Survivor के बाद why I opted for this show? Okay, मैं घर पे बैठा था, मेरे बहुत सारा काम कर रहा था मैं, और मुझे एक दिन फ़ोन आता है कि हम एक शो बना रहे हैं जी के लिए। तो हम लाइक नहीं यार, मेरे पास इतना काम है, मैं नहीं कर सकता। दे लाइक नो, ज़्यादा काम नहीं है, कुछ दिन का काम है। आई सेड हाउ मेनी डेज? सो उन्होंने बोला कुछ 8-10 days ऑफ वर्क। हम लाइक ओके, टेल मी अबाउट इट। सो बोले कि यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर जिसमें यू आर अ वेरी रोमांटिक, लविंग, केयरिंग हस्बैंड। सो आई डोंट नो, आई नेवर सी माई सेल्फ, मैं खुद समझता नहीं हूँ कि मैं बहुत रोमांटिक, आई कैन कम अक्रॉस एज अ रोमांटिक हीरो, but then that's an artist challenge. So I thought, okay. I called them back. I said, okay, let's do it. So I've tried to be romantic in the show, and please give me feedback if I was. And why? What was? Tell me about your character. What is your character? Well, I'm playing character of Anirudh. Anirudh is basically married to Nandini, and they have an amazing relationship in which Anirudh cares for Nandini, and also that Anirudh is he follows his own rules in life. उसके अपने उसूल हैं life में, and there are a lot of times when his rules don't match with his dad's rules. They both have different way of thinking, and he goes वो बहुत देर काम के लिए बाहर रहता है घर से। He likes outdoors, वो बाहर जाता है, घूमता है, boating करता है, and all that stuff. That is what Anirudh is. He's a very outgoing guy. He likes outdoors, but when he is with his wife, he's a very loving husband, and that's it. How's working with your co-actors, Sanjeeda, Aditi, and all? I think I'm a very lucky guy. I'm one of the most lucky guys that I always work with great actors. I don't know if that's how I come across, that I can make good friends. But both of them are very good friends, Aditi and Sanjeeda. We joke a lot, and I remember हम outdoors पे गए थे, तो all the way from Rishikesh to Delhi. It was a road ride. We went on by the road. तो हम पूरे रास्ते 6 घंटे दांत ही निकाल रहे थे, and so I think I've made good friends with them, both of them. Both are amazing females. Yeah. So lastly, what do you want to say, audience? After Geet, which was a hit show, you're making a comeback on TV, full-fledged. Well, that's an artist's life. He just picks up work. That show is a hit or not is audience to decide, and there are a lot of other factors. So मैं कभी ये सोच के नहीं शो पिक करता हूँ कि होगा दिस इज़ गोना बी अ हिट और मैं एक स्टार बन जाऊँगा। मैं सिर्फ ये सोच के एक शो ऑप्ट करता हूँ इफ़ आई थिंक देयर इज सम चैलेंज फॉर मी टू डू, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी फेमस, आई डोंट वांट टू बी अ सेलिब्रिटी एंड नॉनसेंस, आई वांट टू बी अ गुड एक्टर. पीपल शुड से, ओ यार हाँ, ही नोज हाउ टू एक्ट. That's a whole part of life. Meera, I'm playing the character of Meera. I've never played Meera before. As an actor, I have felt that I've never done this role. So for me, I think I really needed a good channel. I needed a good producer. Not that my producers of Sahara 1 were bad. I had an amazing time working with them. That's why I worked for 2 years for Sahara 1. Good people to work with. But Meera का किरदार इतना intense है. There's so many shades to Meera. She's a very intelligent, strong-headed girl. She does what she feels like doing. But at the same time, she's very emotional, very insecure. और वो किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है वो तो आपको देखना पड़ेगा। और शो की अगर बात करें तो शो के थोड़ा बदलती रिश्तों की दास्तान is a family drama, and we stay in a country where we have many joint families. So when they see this show, they will relate to the characters. वो देखेंगे हर एक किरदार में वो अपना एक किरदार पाएंगे, और इस शो की खासियत ये है कि एक किरदार का एक और किरदार है. Like there's a secret to every character. मीरा है और उसका एक सीक्रेट है, नंदिनी है पर उसकी एक सीक्रेट है. So there's a character to every character, and I really was looking forward to work with Ravi Ota Production because I think they're brilliant makers, and more than that, they're wonderful people to work with. And at this stage of my career, I need to work with good people. बलराज की दया से बलराज के पास सब कुछ है, सिवाय एक चीज के. हमारे वंश में पूर्ण विराम नहीं लग सकता. और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू
खास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में एक पल में बलराज अस्थाना की जिंदगी बिखर गई। उसका जवान बेटा अनिरुद्ध एक्सीडेंट में चल बसा। अनिरुद्ध भले ही हमारा खून नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो हमारे सगे भाई से भी बढ़कर है। अगर तेरे चाचा जी नहीं होते ना, तो आज ये सारा व्यापार सब कुछ खत्म हो गया होता। अब तू है और तेरा सगा भाई अगस्त्य। मेरे इकलौते बेटे को गुजरे एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और तुम घर और प्रॉपर्टी का टॉपिक उठाने लगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? शाबाशी। इस सैलाब में उम्मीद का एक ही तिनका था, बलराज की बहू नंदिनी का होने वाला बच्चा। नंदिनी के पेट में अनिरुद्ध का बच्चा है और वही असली वारिस है। Cheers! बलराज को पोता चाहिए था जो उसके वंश का नाम आगे बढ़ा सके। मैंने वाहिगुरु के दरबार से ये तेरे लिए और तेरी होने वाली औलाद के लिए भी खास लाया है। तेरी हिफाजत करेगा ये। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? एक और राज था। ये आने वाला बच्चा ही बलराज का आखिरी अस्त्र था, जिसको इस्तेमाल करके वो अपने भतीजों को अपने बिजनेस से बेदखल कर सकता था। अरे क्या हुआ? क्या? पर नियति के मन में कुछ और ही था। डॉक्टर साहब क्या हुआ? नंदिनी जी इज फाइन, पर हम बच्चे को बचा नहीं पा रहे। अनिरुद्ध की जवान बीवी का मिसकैरेज हो गया। बलराज का दाश का महल गिरने को था। तभी वहां आई मीरा, हवा के झोंके की तरह। और ये है कहानी में ट्विस्ट। सारे परिवार के मन में यही सवाल उठा, कौन है ये? अनिरुद्ध से इसका क्या नाता था? मैं अनिरुद्ध की वाइफ नंदिनी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। और सबकी डोर है बलराज के हाथ में। वो किसको नचाएगा, किसको रुलाएगा? क्या है बलराज का षड्यंत्र जिसमें फंसी हैं मीरा और नंदिनी? जिस आदमी की हथेली पे सब रेंगते हैं, क्या वो इन दो औरतों का भाग्य विधाता बनेगा? दो अलग किनारों पे खड़ी ये दोनों औरतें क्या कभी साथ आ पाएंगी? Okay, and also we've seen in daily soaps, you know, घर की बहुएं, साड़ी and all that. Look at this. So it's kind of Isn't relief this also for you. I don't feel only that I'm coming to this shoot because मैं ऐसा लगता है घर के कपड़े पहनकर आ गई हूँ। And what was Amir's reaction when you told him about the show? Amir is very happy with the promo. He told me you're looking very pretty, so I'm happy. Anything else you'd like to say to the audience? Why should they watch it? You all should watch it because I'm sure that they'll love the show, and I really hope, because we all are working very hard. I'm working on my character, Nandini is working on her character, and जब मैंने इस शो के बारे में सुना, I was like, okay, this is interesting. I'm sure the audience will also feel that. कहानी तो ये बहुत ही तय कहानी है। ऐसा नहीं है कि जो होता जाएगा उस हिसाब से हम कुछ कहानी बनाते जाएंगे। कभी कोई जुड़वा भाई लेके आएंगे, जुड़वा बहन लेके आएंगे, कभी कोई क्रिकेट पे एपिसोड बनाएंगे, कभी कोई पतंग संक्रांत आई तो पतंग उड़ाने पर एक एपिसोड बनेगा, जिसमें माने से किसी की उंगली कटती है तो उस उंगली को लेकर एक एपिसोड बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा इस सीरियल में। ये सीरियल स्ट्रेट एक सीरियल है जहाँ पर एक आदमी जिसको पैसा चाहिए, जिसको अपनी सत्ता चाहिए, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो आदमी उस चीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए वो अपने भाई, अपने बेटे, अपने भतीजों को, अपने सबको इस्तेमाल करता रहता है। तो उसके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं इस सीरियल में। कभी भी रैम्बो खुश हुआ टाइप की कोई हंसी रखकर मैंने ये रोल नहीं किया कि देखो एक विलन आ गया है जो आजकल दिखाते हैं।
लड़कियाँ आती है भयंकर बॉडी मेकअप करती है और यहाँ पर 50 बिंदियाँ और यहाँ पर छल्ले लगा के ऐसे ऐसे हंसती हुई आती है। ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये करने वाला आदमी विलन होता है, ऐसा नहीं होता। आदमी नॉर्मल दिखता है और उसके करतूत, उसके काम, उसका बोलना, उसका बिहेवियर उसे गलत आदमी बना देता है। उस गलत आदमी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और मेरे इशारे पर जो नाच रहे हैं लोग, उनकी कहानी जिस तरीके से मैं बदल देता हूँ उस पर ये कहानी है। मतलब मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे भाई के 2 बेटे हैं जिनको मैं नचा रहा हूँ और एक कहानी में ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है अब? Okay, we have seen you doing it's like positive character. Now back to back we can see you doing negative. No, back to no, it's not back to back. कहानी बदल की 2009 में खत्म हुई। उसके बीच में मैंने कॉमेडी सर्कस करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने एक स्माइल प्लीज नाम की सीरीज की जिसमें मैंने कॉमेडी किया था। स्मृति ईरानी और मैंने थोड़ी सी ज़मीन थोड़ा सा आसमान नाम की सीरीज की जिसमें मैंने 40 साल के उम्र का आदमी लेकिन बच्चा नहीं होता लेकिन वो पागल है, इस किस्म का मैंने किया था। फिर मैंने अभी मेरा एक आज मेरे ख्याल से ख़त्म होगी सीरीज उत्तरम जिसमें मैंने इतना गंदा आदमी किया था। मैं तो कहता ही था कि वो कैरेक्टर है थिएटर का कीड़ा है। इतना गंदा आदमी दिखने में, बोलने में, सब खराब आदमी किया। 6-7 महीने किया और लोगों को ज़बरदस्त पसंद आया और अब ये करें। तो मेरे ख्याल से मैंने कॉमेडी भी करने की कोशिश की, मैंने नेगेटिव भी किया, मैंने पॉजिटिव भी किया। अब वो सीरियल बहुत लंबी चली सीरियल इसलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन उत्तरन के बाद लेकिन उत्तरन में तो बहुत ही ख़राब आदमी है और ये बहुत पॉलिश आदमी है, ये अमीर है, ये पैसे वाला है, ये जिसका काम है, जिसका बिजनेस है, जिसके इशारे पर लोग पहुँचते। तो ये कैरेक्टर फिर से अलग है। स्माइल प्लीज में मैंने किया था, स्माइल प्लीज मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा अदिति और मेरा ट्यूनिंग भी अच्छी है। शी इज़ नाइस गर्ल एंड वो सीखना भी चाहती है। अगर कुछ ऐसा हम कहते हैं कि ऐसा करके देखो तो वो तुरंत तैयार हो जाती है। मेहनती है, काम अच्छा करती है। Okay, and all in all, what do you like to say to the viewers, to the audience? Why should they watch this show? मैं 100% आपको अपनी तरफ से तो यही मुझे लगता है कि ये सीरियल अलग है। मैंने जैसे कहा मैंने कई सीरियल्स देखे हैं जिसमें इतनी वाहियात इश्यूज़ पे सीरियल होती रहती है। मतलब अचार की बोतल टूटने पर एक एपिसोड बनता है, क्रिकेट की मैच पर एक एपिसोड बनता है, पतंग उड़ाने पर एक एपिसोड बनता है, क्रिकेट खेलने पर एक एपिसोड बनता है और गाड़ी में पेट्रोल भरा नहीं था इसलिए गाड़ी अटक गई और मीटिंग कैंसिल हो गई, उस पर एक एपिसोड बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस सीरियल में। और आज इस सीरियल में हम लोग हीरो को हेलीकॉप्टर खरीदते हुए देखते हैं और दूसरे 6 महीने बाद वो गरीब होकर चौर में आता है। ये अनरियलिस्टिक टर्न एंड ट्विस्ट भी नहीं है इस सीरियल में। ये बहुत रियल सीरियल है, इसके हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे एपिसोड में कभी ये नहीं दिखाई देगा कि ये 2 लोग कांस्टेंट काम किए जा रहे हैं। हर एपिसोड, हर सीन में, हर एंगल से 2 लोग 3 लोग नजर आ रहे हैं। नहीं, हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए वो है, वरना वो नहीं है। ऐसे हर लाइन इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन कम करने की कोशिश मुझे लगता है कि नहीं, गड़बड़ हो गई। तो सारी लाइनें मिली। So are you not satisfied with the concepts that are going on right now on TV or something? जिससे मैं खुश हो जाता हूँ करने के लिए वही मैंने किया है। स्माइल प्लीज एक क्लियर कट टॉम एंड जेरी टाइप की कैट एंड माउस वाली एक स्टोरी थी। मैं और अलियस को इसलिए मैंने किया, वो कॉमेडी था और वो कह रहे थे कि मतलब ये दावा था और मुझे वो मज़ा आएगा। उत्तरन सीरियल एक चल रही थी, सीरियल से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा कैरेक्टर बहुत मुश्किल से मिलता है और लोग मुझ में इस कैरेक्टर देने पर विश्वास कर रहे हैं कि इस एक्टर को जिसने पहले इतना पॉजिटिव रोल किया उसके लिए तुरंत दिया मैंने वो किया। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है ये कैरेक्टर भी अलग है, इस सीरियल में 100% अलग है। प्लीज़ देखिए इसे। Thank you so much. After a long wait, your fans are going to see you in a full-fledged show. Yeah. So, why did you opt for this show? Why did I opt for this show? I told you, first of all, the sole reason was to work with the production house. I heard really good things about the production house. Sasral in a full, I had followed it. मतलब I always thought कि कि कौन सा director है जो इतने one shots लेता है, so I always wanted to work with him. I think it's the fact that I got the opportunity. They approached me and I think the character was superb and we got let's just do it. I waited for a long time and it happened. What's your character? My character, she's a very warm girl. She's very sensitive. बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं उसके साथ। उन्हीं चीज़ों के साथ वो जूझ रही है।
इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई उसकी ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. And that's where the drama starts. What happens? There are a lot of people, there are a lot of characters, there are a lot of, the drama happening in the family. And the drama is basically and solely very, जो होता है, it's not create किया, जो ज़बरदस्ती टूसा नहीं गया है, कि आज भी बहुत सारी फैमिलीज में होता है वैसा. लेकिन अगर बात करें तो you play a widow. So how the story started, and are you going to stick to the same color in the entire show? Because a lot of times बहुत सारी actresses whites and all. मैं बिल्कुल नहीं बोर होंगी. I think I love white and I think I'm really happy to be in white and plain look. I think glam look भी मैंने कर लिया है, तो I think this is the time when I try something different. But I don't know, basically initially तो बेचारी ऐसी ही है, आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से she might change. And how's it working with Kiran and Sanjeev? It is fabulous. It's fabulous working with all of them. I think You've done a show already from Kiran. I've done a show with Kiran sir, yes, and it was fantastic. But that was totally, comedy. That was मज़ेदार वाला जो कॉमेडी नहीं होता है वो था, जहाँ पर उन्होंने भी शायद मुझे ऐसे नहीं देखा होगा, तो वो जब पहली बार देखा तो I had that, but it's really good working with Mona ji. I've done a lot of scenes with her. Sanjeeda, I have a very good rapport with. She's like very nice and we gel very nicely. Yeah. Lastly, what do you want to say your fans after a long wait? Yeah, I was not allowed to talk about it. Please forgive me for this, but here I am again with all and trying something different again. Let's just do things first.